भाई वो एक डायलॉग था ना, सीजन पे सीजन, सीजन पे सीजन, सीजन पे सीजन, सीजन पे सीजन निकल गए माय लॉर्ड। आरसीबी ट्रॉफी कब जीतेगी माय लॉर्ड? अब तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सलमान खान की शादी पहले होगी या आरसीबी ट्रॉफी पहले जीतेगी? कब जीतेगी ये टीम? कब कब इनका खून खोलेगा? कब अपने फैंस के लिए ये ट्रॉफी जीत के लाएंगे? क्वालिफाई नहीं करना है भाई, ट्रॉफी जीत के लानी है। वो दिन कब आएगा भाई? क्या हम उस दिन को देखने के लिए जिंदा रहेंगे? दिस इज द बिग 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 क्वेश्चन भाई। 17 साल हो गए, 17 ईयर्स, द ड्रॉट इज स्टिल देयर। क्या इस साल वो ड्रॉट खत्म होगा? क्या नया कैप्टन पटीदार इसको ठीक कर पाएगा? क्या विराट कोहली में अभी भी वो दम है 2008 से लेकर 2025 तक, कि अभी भी कैन ही गिव हिज 200%? क्या अभी भी इनके पास वैसे बॉलर्स हैं, वो बिलीफ है, वो टीम मैनेजमेंट है जो शुरू हुआ राहुल द्रविड़ से और अब आ गया है यहाँ तक? मतलब इतने सारे सवाल हैं, और जवाब भी इन्होंने कभी कभी दिए हैं। दे हैव क्वालिफाइड लास्ट ईयर, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स इन 2016, बट कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर। बड़े बड़े नाम होते हैं बट बिग बिग स्टेज पे आके नहीं कर पाते हैं शुभम। तो कैन दिस ईयर बी देयर ट्रॉफी विनिंग ईयर? दिस इज द बिग क्वेश्चन। बताइए। Before we analyze the squad, right, Akshit, like I stay in Bangalore. I have met so many fans, especially of RCB team. They are probably the most emotionally attached fans, Akshit. A fan base who supports their team so much, a team which has not given them a trophy, but the way they support, the love for their team. Bhai, this is probably the most extraordinary fan base in IPL. आप और भी टीम होंगे, दिल्ली की टीम है, और भी फ्रेंचाइजी होंगे, वो अच्छे खेले, फाइनल तक गए लेकिन ट्रॉफी नहीं जीते, बट the fan base, the love for that team, the fan base that RCB has, without winning a single trophy, the support they show every year, and even if they don't win, still saying that इस बार नहीं हुआ तो अगले बार हो जाएंगे. The way they support their team, right? It's like I don't have words to explain. Just for this team, this team has to give them a trophy. They deserve that trophy. I have so many close friends who are like huge fan of RCB and Virat Kohli and that their whole history. बहुत लोग बोलते हैं कि भाई क्या लेगेसी छोड़ के गए, तो ट्रॉफी नहीं जीता, तो हाँ भाई उनकी लेगेसी है. आरसीबी हैज अ लेगेसी. आरसीबी हैज लेगेसी इन प्लेयर लाइक क्रिस गेल. आरसीबी have legacy in player like Abby de Villiers. RCB have legacy in player like Virat Kohli. A season of 960 odd runs. This is part of a legacy. RCB had player like Chahal, who is the highest wicket taker of IPL. RCB have legacy in all of them. RCB have a legacy in their fan base. That fan base deserves a trophy. And they have been doing well, Akshat. In the last few years, वो लोग consistently qualify कर रहे हैं. Last year also, somehow they may qualified. 1% chance लेकर, with that 1% chance, they qualified from a position where nobody believed in them. कि Yeah. क्वालिफाई कर भी सकते हैं. दे मतलब कितने सारे चीज had to go right for them to qualify. Not only them winning, but others team also accordingly should lose. और वो सब हुआ and they qualified. But जो आपने बोला, they are missing out. हमने देखा है 2016 के फाइनल में देखा है, they lost from a winning position, अक्षत. मतलब पूरा जीता हुआ पोजीशन था, but somehow they lost it. लास्ट ईयर उन्होंने सीएसके को हरा के गए, but the moment they faced आरआर, they lost the match. तो वो जो लास्ट जो है ना, वो वाला उनको पार करना है. For that, we'll analyze, do they have that team? Have they built that team? They have built that team a bit differently this year, I felt. DK's influence, Dinesh Karthik influence I saw in that team. He was one of the, I think, उनके सारे आरसीबी के मैनेजमेंट के साथ थे वो Yeah. ऑक्शन में. तो लेट्स सी द टीम. ठीक है ना, उन्होंने कुछ चेंजेस लाए. We'll see how those changes works out. So the first in opening, that's a huge change. They have decided not to go with their captain.
in this new cycle. Dropping Faf du Plessis. Faf du Plessis is one of the most successful opener in IPL history. He has been so much successful with CSK. He has been successful as a captain, as a fielder, as a batter for RCB also. So to take that big call of not going with him, big call. But they have replaced him with an equally great batter. उनसे भी अच्छे स्ट्राइक रेट रखने वाले फिल सॉल्ट. So agar if there was anybody who can replace Faf du Plessis, I feel that is Phil Salt in the current cricketing setup. So for that, I don't think they have to worry a bit. Yes, his recent form has not been good, but we have seen Phil Salt can do that damage for what they did in it with KKR last year. If he repeats the same in RCB, plus he has a pitch like what I forgot the stadium name. चिन्नास्वामी. चिन्नास्वामी यार. चेस चप्पो कर रहा है बार बार नहीं. But what the batting paradise that Chinnaswamy is, I think Phil Yeah. Salt will enjoy that stadium a lot. छोटा ग्राउंड है, छक्के मारेंगे, छक्कों की बरसात लगा देंगे Phil Salt. Along with him, no doubt, who is the other opener? It is Virat Kohli. Yeah. Again, we know how consistent he has been. We know how consistently he has been playing. उनका recent form बहुत ही अच्छा है. Champions Trophy में he was the best batter along with Shreyas Iyer for us. So no doubt about his form. Last season बहुत ही अच्छा सीजन गया इनके लिए, आरसीबी के लिए. I think he scored some 750 odd runs in last season. I think he has the capability to repeat the same this season also, Akshit. Yeah. Because if he has Phil Salt along with him, he doesn't have to take that risk. He can play at his own pace. और जो बंदा इतना आसानी से सिंगल लेता है, इतने सारे डबल लेते हैं, 2-3 चौके मार के भी he can easily keep a strike rate of 130 to 140. Yeah. He is that good of a batter, Virat Kohli. So no doubt, Virat Kohli and Phil Salt is opening. ठीक है ना? Yes. 3 पे आप किसको देखते हो अक्षित? यार मैं देखना चाह रहा हूँ पटीदार को, बट पटीदार के आते ही वो 3 राइट हैंडेड बैट्समैन हो जाएंगे टॉप 3 में, जस्ट बिकॉज वो एक मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए. आई वुड वांट देवदत्त पडिक्कल, और इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू. इंडियन कोर बैटर्स में आप देखें तो उतने ऑप्शंस है नहीं, इनके पास ऑलराउंडर्स काफ़ी भर के हैं. बिल्कुल. देवदत्त पडिक्कल इज अ लेफ्ट हैंडेड बैटर. वो भी ठीक खेलते हैं. ही इज़ अ गुड वेरी टैलेंटेड प्लेयर. T20 में उतना उनका फॉर्म नहीं रहा है, बट आरसीबी वुड वांट कि भाई ये अच्छे फॉर्म में रहें. तो इनके पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पडिक्कल एट नंबर 3 लेफ्ट हैंडेड बैटर, एंड एट नंबर 4 आई विल सी पटीदार. Yes, Padikkal को खेलना पड़ेगा, but again, just because you have to play, I think you cannot compromise on strike rate or run rate because you have to play Patidar, not Patidar, Padikkal. पडिक्कल. ठीक है ना? क्योंकि पडिक्कल का आप देखेंगे, he has been there for a long time. He has played for RCB. He was opening with Virat Kohli at one point of time. He went to Rajasthan Royals. Rajasthan Royals से भी उनका इतना consistent नहीं रहे वो. So just because you have to play Padikkal, I don't think it's necessary, because अगर आपने run rate पे compromise कर दिया, you have to remember that you are going to play most of your matches in Chinnaswamy. You have to score big in that stadium. You cannot compromise like हाँ Padikkal को भेज देते तो left right रहेगा, but then you score 20-30 run less. बहुत बड़ा factor है अक्षित. ठीक है ना? So yes, probably अगर आप लेफ्ट राइट देखेंगे तो शायद पडिक्कल को आना पड़े. But again, what Patidar gives is that Patidar is a very very good player of spin bowling. Last year हमने देखा कितना इफेक्टिव है. इस बार भी शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो फाइनल पे लेके गए अपनी टीम को. बिल्कुल. He is in great form. With captaincy on his shoulder, with Virat Kohli to support him, I think he will be great for RCB this year. फॉर्म में बंदा, कॉन्फिडेंट बंदा है. वी हैव सीन फाइनल में भी अच्छे पारी खेली थी उन्होंने, नॉट फाइनल जो उन्होंने सीएसके को हराया. ठीक है ना? ही प्लेज दोस क्रूशियल नोस, प्लेज स्पिन वेरी वेल. ओनली फॉर दैट रीजन आई विल पुट हिम एट नंबर 4. बट अगेन, अगर विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने अच्छी शुरुआत दे दी और वो लोग 8-9 ओवर तक खेल गए, आई विल देन ब्रिंग डायरेक्टली रजत पाटीदार. Yes. If the spin is in tandem, no point of going to Padikkal. I'll rather play Rajat Patidar. Only if you see that within power play, किसी एक का विकेट गिर गया, then you can send Padikkal, because Padikkal have also opened the batting most of the times. ठीक है ना? तो आपके Padikkal नंबर 3 पे, 4 नंबर पे आपके पतिदार आ गए. ठीक है? 5 नंबर पे आप किसको खिलाओगे? शुभम 5 पे आने से पहले मैं सोच रहा था एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि
इंग्लैंड जैकब बेथेल को भी नंबर 3 पे खिलाती है, टी बिल्कुल। ट्वेंटी में, वनडे में, वाइट बॉल क्रिकेट में। तो क्या आरसीबी भी नंबर 3 पे ट्राई कर सकती है जैकब बेथेल को? वो यस। एक स्पिन ऑप्शन भी है, लेफ्ट हैंडेड, यस। वो भी लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, स्पिन स्पिन भी देते हैं। तो डेविड पडिक्कल को ड्रॉप करके मे बी दे कैन गो विद जैकब बेथेल। व्हाट दैट विल डू इज दैट विल ईट अप अ पोजीशन फॉर अ फॉरेनर, बट दे कैन स्टिल मैनेज, क्योंकि फिल सॉल्ट हैं, बेथेल हैं, वील सी की, लिविंगस्टन भी आएंगे आगे, हेजलवुड भी आएंगे। तो तब भी इनका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप नंबर 3 पे खिला लीजिए जेकब बेथेल को, नंबर 4 पे आपके पटीदार आ गए। तो अगर पडिकल नहीं खिलाना है तो इनके पास बैकअप बेथेल का भी है वहां पे। एक काम करते हैं अक्षित, इवन आई फील लाइक दैट बेथल इज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। अगेन ही हैव नॉट प्लेड मच इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। इवन इंग्लैंड के लिए भी जब वो आए खेलने तो अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे मुझे। तो इफ आरसीबी इज कॉन्फिडेंट दैट बेथल कैन गिव देम मोर देन प्रॉब्ली पडिकल, लेट्स प्ले हिम एट नंबर 3। या ठीक है। और नंबर 4 पे आपके पतिदार हो गए। पटीदार हो गए। ठीक है ना? ठीक है ना? नंबर 5 पे आप किसको खिलाओगे? लियम लिविंगस्टन। लियाम लिविंगस्टन, ग्रेट ग्रेट। नंबर 5 पे आई थिंक नो डाउट अबाउट दैट, वो स्पिन भी करके देंगे आपको। और वी नो हाउ बिग ऑफ हिटर ही इज। यस। मतलब ही कैन लिटरली विन यू मैच सिंगल हैंडेडली। यस। So I think that is a big thing to have him at number 5, because we have to remember Dinesh Karthik is not playing for RCB anymore. I think that या is a big loss. His retirement is a big loss. अगर आप सोचेंगे कितने अच्छी पारियां खेले दिनेश कार्तिक, within few years he has become a legend of that team. यस। So they will miss Dinesh Karthik a lot. To just fill his shoes, they'll have to bring multiple batters who can hit the ball so well. क्योंकि दिनेश कार्तिक सिर्फ खेलते नहीं थे, he used to play at a strike rate of almost 160 170। वो जो कुछ तो एक अवार्ड है ना कि मोस्ट स्ट्राइक रेट वाला, उसमें हमेशा दिनेश कार्तिक के नाम रहते थे पहले एक दो तीन बैटर में, क्योंकि उनका बिल्कुल। स्ट्राइक रेट रहता था ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अंदर रसल। लेकिन अंडर रसल वाज अ पावर हिटर, दिनेश कार्तिक वाज मोर ऑफ अ लाइक ही विल मैन्यूवर द बॉल, पीछे खेल देंगे, सामने छक्का मार देंगे, ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। बट अगेन दिनेश कार्तिक इज नॉट प्लेइंग, सो लियम लिविंगस्टन हैज अ बिग रोल टू प्ले इन दिस टीम। आई थिंक फॉर दिस रीजन दे हैव ब्रॉट हिम इन। ठीक है ना? यस। ठीक है, तो आपके नंबर 5 पे लियम लिविंगस्टन हो गए। नंबर 6 पे आई प्ले आई थिंक कृणाल पांड्या। आई थिंक वी डोंट हैव मच डाउट ऑन दैट। ठीक है ना? कृणाल पांड्या को खिलाओ, और यू कैन प्ले नंबर 7 पे, यू कैन इंटरचेंज अकॉर्डिंगली, यू कैन शफल। नंबर 7 पे आप किसको खिलाओगे? इज इट टिम डेविड और रोमेरो शेफर्ड? शेफर्ड। यार आई थिंक कि अगर हम फिल सॉल्ट और जैकब बेथेल एंड लियम लिविंगस्टन ले रहे हैं, देन वी कैन नॉट अफोर्ड शेपर्ड और टिम और डेविड, बिकॉज वी डेविड। वांट हेजलवुड इन द बॉलिंग। हम्म। तो अगर हम बेथल के साथ जा रहे हैं, then unfortunately both Tim David and Shepard will not be able to play in this playing 11. I would then go for a Jitesh Sharma. यस। Jitesh, जितेश शर्मा एंड कृणाल पांड्या कैन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। आप यस। 6 या 7 पे आ जाइए, कहीं पे भी डिपेंड करेगा आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए, राइट हैंडर चाहिए। ऑल्दो आई विल स्टिल कीप विद फिल सॉल्ट कीपिंग करेंगे, बट जितेश शर्मा भी एक अच्छे हिटर हैं, इंडिया के लिए भी टी20 में खेले हुए हैं, तो अगर वो भी फॉर्म में है तो ही इज अ गुड ऑप्शन देयर। तो आई विल कीप 6 कृणाल पांड्या, 7 जितेश शर्मा, देन 8 पे मैं एक स्पिनर लेके आऊंगा। इनके पास स्पिनर, अच्छा कृणाल पांड्या हमने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। तो 8 9 10 11 में एक तो आपके हेजलवुड हो गए, यस। ठीक है, भुवनेश्वर भूवी। इन्होंने लिया भूवी। है। 9 पे भुवनेश्वर हो गए, इन्होंने यश दयाल को रिटेन किया था तो वो 10 पे आ जाएंगे। यस। अब 11 में देखना है कि कोई स्पिनर का ऑप्शन इनके पास है कि नहीं है। जितना मुझे लग रहा है कि शुभम, इनके पास सारे फास्ट बॉलर्स ही हैं, एक सुयश शर्मा है जो स्पिन कर लेते हैं, बट क्या वो आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे? और विल दे कंटिन्यू विद रसिक दार वहाँ पे, क्योंकि स्पिन में आपके पास केवल लिविंगस्टन एंड कृणाल पांड्या आ रहे हैं। तो आप खेलने वाले हैं चेन्नई में, आप खेलेंगे अहमदाबाद में, आप खेलेंगे कैलकाटा में ईडन गार्डन्स में जहाँ पे स्पिन काम करती है। तो वहाँ थोड़ा मेरे को इनका ना थोड़ा वॉइड लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा स्पिनर का नाम मुझे दिख नहीं रहा है शुभम। अगर आप मुझे यस। हेल्प करें इसमें कि नंबर 11 पे हम किसको खिला सकते हैं इसमें। अगेन सी, कृणाल पांड्या आपको 4 ओवर करके देंगे, बट अगेन इजी बॉलर हु विल गिव एवरी मैच 4 ओवर्स, थोड़ा दिक्कत है यार। अगेन द सेम गोज विद लियम लिविंगस्टन। He is not a bowler that you can bound like that you can say that हाँ every match he'll give me 4 overs, proper 4 overs। तो आपको you'll have to go with a spinner, and I think they lack options in that, so they will probably have to go with Suresh Sharma। या
सो नंबर 11 पे आपको सुरेश शर्मा दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो सी, आई थिंक द टीम दे हैव बिल्ट राइट इज मोर थिंकिंग व्हाट चिन्नास्वामी ऑफर्स। हम्म। इन चिन्नास्वामी ड्यू बहुत होते हैं, ठीक है। स्पिन आपके ज्यादा काम नहीं आता है क्योंकि ग्राउंड छोटा है। अब पहले जाओगे आप, हमने ठीक है, हम हर समय चहल का देख के बोलते हैं कि भाई चहल ने तो 200 विकेट ले लिया, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर। या चहल इज नॉट अ ऑर्डिनरी बॉलर, ठीक है ना, ऐसे वैसे बॉलर नहीं, ही इज अ वेरी 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 गुड बॉलर। या ही डजंट गेट एनफ एप्रिसिएशन फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर आरसीबी, ठीक है ना। इतने सारे विकेट लेना उस स्टेडियम में, उस छोटे ग्राउंड में, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। ही इज वन ऑफ द बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉलर ऑफ आईपीएल, ठीक है ना। सो बिकॉज दे डोंट हैव मच ऑफ अ स्पिनिंग ऑप्शन, दे हैव टू गो विथ सुरेश शर्मा, ठीक है ना। बट व्हाट दे हैव डन गुड इज दैट कंसिडरिंग दैट स्पिन ज्यादा काम नहीं आएगा शायद इस बार, they want to have very good relationship with the stadium which they haven't been doing well for the last several years। हम जैसा बोलते हैं कि चेन्नई ने फोर्ट्रेस बना दिया चेपॉक को, या फिर कभी कभार हम इवन लखनऊ के लिए वो बोलते हैं कि दे हैव बिल्ड अ फोर्ट्रेस इन इन उनका जो एकाना स्टेडियम है ना या उधर। क्योंकि हमने देखा कि दे प्लेस वेरियर, वो टीम भी ऐसे बनाते हैं, सारे स्लो बॉलर से जो स्लो पेस वेरिएशन करते हैं वैसे बॉलर बॉलर से भर रखे है टीम। बट आरसीबी इज वन टीम विच वी नेवर रिलेट करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि आरसीबी बाहर खेलते हो तो अच्छा खेलता है, जब भी चिन्ना स्वामी में आते हैं तो बिकॉज द ग्राउंड इज सो स्मॉल, एनी एनी स्कोर कैन बी चेंज डाउन। या सो वो थोड़ा दिक्कत है, बट दिस टाइम दे ट्राई टू रेक्टिफाइड विद देयर बॉलिंग, द बॉलिंग दे ब्रॉट इन। हेजलवुड हैज डन सो वेल फॉर देम, दे हैव केप्ट हिम इन कि भाई हमको तुम्हारे पहले के ओवर चाहिए, because you have been so successful with us, ठीक है ना। yes there is some issue with his fitness recently, but what I've heard is that उन्होंने अच्छे ब्रेक ले लिए, he has been rested well and he we should be well and fit and well to go for this IPL। if he is fit he is a very good bowler अक्षित। मतलब from the time he has started playing for CSK, तब से जो उनका T20 में जो कमबैक हुआ ना, he has never stopped after that, he have played so well in the T20 setup also, या ठीक है। उसके साथ उन्होंने किसको लिया, दे हैव इन्वेस्टेड सो मच इन भुवनेश्वर कुमार। मैं थोड़ा स्केप्टिकल था व्हेन दे वाज गोइंग वेरी हाई बिकॉज आई फेल लाइक दैट भुवनेश्वर कुमार इज पास्ट हिज पीक, बट ही हैज एक्सपीरियंस, ही कैन बोल एट द डेथ, ही कैन बोल इन द फ्रंट, ही हैज एवरीथिंग एज अ बॉलर। अगर आप वो एस्पेक्ट छोड़ देंगे कि हिज एज एंड हिज पीक पीरियड हैज प्रॉब्ली लेफ्ट हिम, अगर वो एस्पेक्ट छोड़ देंगे, भुवनेश्वर कुमार इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 10 years। बंदा जो स्विंग कराता है, पहले पहले आपको 2 बार ऐसा देंगे जो बॉल आपको छू भी नहीं पाएंगे आप बैट से, इतना स्विंग कराता है। जो दीपक चहर कराता है ना, उनसे भी आप 2 गुना जोड़ लो, उतना अच्छा स्विंग कराता है भुवनेश्वर कुमार। एंड ही स्विंग्स इन बोथ वेज, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों कराते हैं। फिर लास्ट में आके आपको यॉर्कर डाल के देंगे, ही हैज एवरीथिंग। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट बाय आरसीबी, दे नीडेड टू स्ट्रेंथन द बॉलिंग। हम लोग हर समय से सुनते आ रहे हैं यार बैटिंग तो उनका हर समय अच्छा है, बड़े बड़े प्लेयर रहते हैं, क्रिस गेल रहते हैं, फिर आपके एबी डिविलियर्स है, ऐसे बड़े बड़े बैटर्स खेल के गए आरसीबी से। बट डू यू रिमेंबर एनी लेजेंडरी बॉलर फ्रॉम दिस टीम अदर देन प्रॉब्ली युजवेंद्र चहल? कोई बॉलर याद आ रहा है ऐसा लाइक देयर बैटिंग? नो। no no So I think it's high time that they invest in some good bowling, and they have done it this time in Bhuvaneshwar Kumar। क्योंकि आप अगर भुवनेश्वर कुमार ले लीजिए, यस दयाल उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, ही हैज वन देन द मैच अगेंस्ट चेन्नई बाय डिफेंडिंग सम 16 रन्स, और वो भी पहले बॉल में छक्का मारने के बाद उन्होंने डिफेंड किया अगेंस्ट धोनी एंड जडेजा। इट्स नॉट अ स्मॉल फिट, ही विल बी फुल ऑन कॉन्फिडेंस। तो आपके 3 आपके क्वालिटी पास फास्ट बॉलर हो गए आपके पास, और उस वाले फील्ड में स्टेडियम में आपको वैसा ही चाहिए, ठीक है ना। यस, द वन थिंग दे लैक इज इन द स्पिन अटैक, और आपने बहुत ही सही बोला, व्हाट विल दे डू व्हेन दे गो आउटसाइड? क्योंकि चेपॉक को फोर्ट्रेस बनाना आसान है चेन्नई के लिए, आरसीबी का जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है उसको फोर्ट्रेस बनाना बहुत ही मुश्किल है। व्हेन द ग्राउंड इज स्मॉल व्हाट कैन यू डू? या अब कितने भी अच्छा बॉल कर लो, थोड़ा सा इधर लग जाएगा छक्का हो जाएगा। सो दे विल हैव टू विन मैचेस आउटसाइड देयर होम आल्सो, वेयर प्रॉब्लली थोड़ा बहुत स्पिन हो, और उधर थोड़ा बहुत उनको दिक्कत होगा बिकॉज आई डोंट सी एनफ स्पिन अटैक इन दिस स्क्वाड।
तो आपके बिल्कुल। 3 बॉलर हो गए और आपके सुरेश शर्मा हो गए। और आप किसी एक को आप या फिर बैटर बेस्ड ऑन आपका बैटिंग वीक वीक लगे, या फिर आप बॉलिंग में आप रसीदर सलाम को भी खिला सकते हो। या बिल्कुल यार, बस वही मेरे को लग रहा है कि पता नहीं, अभी से नहीं यार, मतलब 5-6 साल से हमने देखा है, दे हैव लेट गो सम इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, मतलब आई स्टिल कैन नॉट बिलीव हाउ दे रिलीज्ड युजवेंद्र चहल. Now I'm not able to digest how they left Faf du Plessis, how they left Mahipal Lomror, how they left मतलब कोई मैक्सवेल। स्पिनर, मैक्सवेल को छोड़ दिया, और भी कोई स्पिनर्स नहीं है इनके बाद. आप देखो यार, मतलब इन्होंने कोई ऑक्शन में स्पिनर्स भी नहीं लिए. या तो ये हो ना कि तो कोई एक बड़ा इंडियन नाम लिया होता स्पिनर में. ऐसा नहीं है कि इंडियन स्पिनर्स नहीं है, काफी अच्छे स्पिनर्स चल रहे हैं, बट इन्होंने लिया ही नहीं, इन्होंने केवल यश दयाल को रखा. तो ठीक है, मेगा ऑक्शन था, पूरी नई टीम बनी, बट मुझे इसमें ऐसा लग रहा है शुभम, काफी ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं एंड काफी बॉलर्स भरे हुए हैं. बैटिंग में बैकअप इंडियन बैटर्स में सिर्फ इंडियन एक बैटर्स वीक है। हाँ। स्वास्तिक चिकारा है बस. हाँ। तो व्हेन इट कम्स टू बैकअप्स एंड बेंच स्ट्रेंथ, टीम थोड़ा स्ट्रगल करेगी. खुदा ना खास्ता अगर फिल सॉल्ट या पटीदार या विराट कोहली इंजर्ड हो गए और 3-4 मैच के लिए बाहर हो गए, तो दे विल रियली स्ट्रगल, बिकॉज दे रिलाई हैवी ऑन देयर फर्स्ट 11. वो यस। अगर ठीक ठाक खेल रही है तो दे माइट स्टिल विन सम गुड मैचेस. अदरवाइज इनके पास टिम डेविड और शेपर्ड है, फॉरेन प्लेयर्स हैं. आपने फॉरेन प्लेयर्स भी ऐसे लिए हैं कि आपको चार जो खेलने हैं, वो आपके 14 के 14 मैच खेलेंगे खेलेंगे, तो यू कैन नॉट इवन एक्सपेरिमेंट विद योर फॉरेनर्स. तो थोड़ी दिक्कत वहाँ आने वाली है. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पडिक्कल का, एंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पटीदार एंड कोहली का चलना. ये तीनों अगर इंडियन बैटर्स चल गए, देन दे हैव द लिबर्टी ऑफ यूजिंग लिविंगस्टन एंड कृणाल पांड्या, हेजलवुड. जैसे खेलना खेल लीजिए. इंडियन प्लेयर्स का चलना बहुत जरूरी है शुभम इस टीम में. देखिए, व्हाट यू हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। इनका जो इंडियन का जो बैटिंग कोर है दैट इज अ बिट वीक। बट मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ। ठीक है। स्वास्तिक चिकारा हैव डन सो वेल इन उत्तर प्रदेश T20 लीग। ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर दिस टाइम। उन्होंने कुछ या तो 500 रन मारे एट एन एवरेज ऑफ 50। स्ट्राइक रेट भी उनका 150 के करीब, एंड ही ओपन्स फॉर द टीम। ठीक है ना। व्हाट इफ वी पुट स्वास्तिक चिकारा एट नंबर 3? ठीक है। अगर 3 नंबर पे आप स्वास्तिक चिकारा को खिलाओगे, यू गेट वन मोर फॉरेन स्लॉट लेफ्ट नाउ बिकॉज यू आर यस. नॉट प्लेइंग जेकब बेथल। देन यू कैन प्ले आइदर ऑफ रमारे शेफर्ड और टिम डेविड। नाउ सडनली योर आपके जो बैक में ना पावर हिटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, लाइक इट्स इमेंस। इफ यू हैव लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा एंड प्रॉब्ली कृणाल रमारे पांड्या. शेफर्ड, शेफर्ड एंड कुणाल पांड्या। मतलब ये 4 भयंकर बैटर है। दे आर मॉन्स्टर्स विद द बैट। इन चारों के पास इतना क्षमता है कि 6 ओवर में 100 रन बना सकते हैं लास्ट के 6 ओवर में। सो आई थिंक वो भी एक ऑप्शन हो सकता है कि यू प्ले चिकारा एट नंबर 3, अगर आपको पारिकल के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस ना हो और जेकब बेथल का आपको ये लगे कि शायद बैटिंग में उतना सबकॉन्टिनेंट में नहीं कर पाए, ही नीड सम टाइम। गिव ए ट्राई टू स्वास्तिक चिकारा, बट अगेन इफ यू डोंट प्ले बेथल यू लूज आउट ऑन हिज स्पिन बॉलिंग जो आपका ऑलरेडी वीक है थोड़ा। यस. आपके पास ऑलरेडी कृणाल पांड्या और लिविंगस्टन है, जो हाँ। आपको शायद 6 ओवर ही दे पाएंगे, 3-3 ओवर मिला के. तो हम्म। यू हैव टू रिलाई ऑन योर फास्ट बॉलिंग. अगर फास्ट बॉलिंग का दिन खराब रहा, तो फिर आप आराम से 200 230 रन खाएंगे. तो बिल्कुल। जितना हो सके आपको स्पिन रखना पड़ेगा. अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आप धर्मशाला में भी खेलेंगे, आप कलकत्ता में खेलेंगे, अहमदाबाद में खेलेंगे, आपको हर जगह स्पिन चाहिए ही चाहिए. तो वही यार, एक वही एक, और पर एक ये बात ये भी है ना कि यार, किसी टीम का अगर नंबर 3 ही अभी तक हमको फिक्स नहीं लग रहा है, तो थोड़ा वीकनेस बैटिंग में जरूर है यार. तो ये एक दिक्कत आएगी इनको. एंड जस्ट फॉर दैट आई थिंक ये इनकी थोड़ी सी वीकनेस है कि इंडियन बैटिंग मिसिंग है थोड़ी. इनका देखो, इनका वीकनेस बहुत सिंपल है। इंडियन कोर बैटिंग इन द टॉप ऑर्डर। ठीक है ना। और इनका स्पिन अटैक। द प्रॉब्लम विल प्रॉब्ली कम द मोस्ट अगर वो अच्छे खेल भी ले और उन्होंने करू क्वालिफाई कर लिया। एक तो भाई पता नहीं क्या हो जाता है जब भी टूर्नामेंट एंड होने को आता है, पता नहीं इंग्लैंड वाले सारे बुला लेते हैं कि आ जाओ भाई, हम्म. हमको हम्म. कुछ ना कुछ तो खेलना होता है। एक बार वो बुला लेंगे ना तो देखो अब कितने प्लेयर जा रहा है। बेथल जा रहा है वापस। ठीक है। लियाम लिविंगस्टन जा रहा है वापस। ठीक है ना। आपके और कौन हो गए? फिल फिल सॉल जा रहा है वापस। विराट कोहली जा रहा है वापस ना, सॉरी। तो आपके 3 3 प्रॉपर बैटर जा रहे हैं वापस अपने घर। ठीक है ना। सडनली यू सी दैट आ भाई, कहाँ है प्लेयर? बिकॉज आपके इंडियन कोर आपके है नहीं आपके पास। एंड देन
द सेम गोस फॉर द अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। जितना टूर्नामेंट चलता रहता है, आपके पिचेस बिकम्स मोर सूख जाता है, फिर ज्यादा से ज्यादा स्पिनर को मदद मिलने लगता है। सो यू नीड स्पिनर्स एट द एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट। वो भी आपको वीकनेस है। तो वो मुझे थोड़ा खटक रहा है कि हाउ विल दे रिकवर दैट, कैसे वो थोड़ा कंपेंसेट करेंगे अपने फास्ट बॉलिंग अटैक से या फिर अपनी इंडियन बैटिंग से। दैट दे विल हैव टू मैनेज स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। और अगर उनके सारे फिट रहे, इफ दे हैव देयर नंबर 3 सॉर्टेड विद आइदर पडिक्कल और स्वास्तिक चिकारा और जेकब बेथल, आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड टीम अक्षित। नीचे उनका हिटिंग पावर बहुत है। अगर वो किसी तरह किसी कॉम्बिनेशन बना के ये चार खिला लेना, जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन और रोमेरो शेफर्ड स्लैश टीम टीम डेविड और हम्म, आपके कुणाल पांड्या, दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट लोअर ऑर्डर बैटिंग इन दिस होल टूर्नामेंट। ऊपर आपके पास विराट कोहली और फिल शॉट है, बीच में आपका रजत पाटीदार है। बैटिंग इनका सॉर्टेड है यार। सिर्फ एक पोजीशन के लिए आपको चिंता नहीं करना, बैटिंग तो इनका सॉर्टेड है। अनलेस कोई एक इंजर्ड हो जाए तब दिक्कत आ जाएगा, बिकॉज दे डोंट हैव इंडियन बैटिंग बैकअप। ठीक है ना, या फिर कोई बुला ले उनको तब दिक्कत आ जाएगा। बट इफ दे कैन प्ले द टॉप, जो टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप थ्रू आउट द टूर्नामेंट, दिस इज अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप अक्षय। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप अलोंग विथ SRH पंजाब बोल सकते हो आप। ठीक है ना। इसके बाद बॉलिंग पे ले आओ आप। बॉलिंग पे इनका फास्ट बॉलिंग सॉर्टेड है। भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड विल स्टार्ट द बॉलिंग अटैक। बीच में आपके यश दयाल आएंगे और एंड में भी यश दयाल आपको अच्छे बॉलिंग करके देंगे, बिकॉज ही हैज वेरी गुड पेस वेरिएशन। yeah. And the guy who have defended against MS Dhoni and Jadeja will be very high on confidence. बुमराह आपको लास्ट में आके यॉर्कर बॉल डाल सकते हैं। रशीदर सलाम आपके पास, अगर आपको उनको खिलाना है उनको भी खिला सकते हो आप बॉलिंग में। वो उनका पेस वेरिएशन अच्छा है। सो अगेन इफ दे कैन प्ले द स्ट्रॉन्गेस्ट 11, स्पिन अटैक में उनको देखना पड़ेगा। आई थिंक दे हैव टू प्ले सुरेश शर्मा, या फिर आप स्वप्निल सिंह को खिलाना। लेकिन वो थोड़ा बहुत बैटिंग बैटिंग भी करके देंगे, उनका बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है। बट वी हैव सीन दे हैव प्लेड स्वप्निल सिंह बिफोर इन लास्ट सीजन एज एन सब्स्टिट्यूट, एंड ही हैज कम एंड पिक अ फ्यू विकेट्स। स्पेशली जब आपके लेफ्ट हैंडिंग बैटिंग कर रहे होते हैं, हमने देखा है कि वो स्वप्निल सिंह को लेके आते हैं। Yeah. ठीक है ना। तो ऑप्शन है इनके पास। स्पिन में थोड़ा वीक है, बट देयर बैटिंग एंड फास्ट बॉलिंग आई फील इज टोटली सॉर्टेड अक्षित। सही है शुभम। तो मतलब अगर हम इस टीम को रेट करें, अगर आप कह रहे हैं कि सॉर्टेड है, बहुत रिलाय कर रहे हैं फर्स्ट 11 जो स्ट्रॉन्ग 11 है, उसी के कारण मुझे आधा आधा पॉइंट काटना पड़ रहा है, वरना मैं इनको 4 4 पॉइंट देता बॉलिंग एंड बैटिंग में। बट क्योंकि दे रिलाई टू मच ऑन देयर मेन प्लेयर्स, अगर मेन प्लेयर इंजर्ड हो गए बाई चांस और नहीं चले, फॉर्म में नहीं रहे, देन दे डू नॉट हैव समवन एज इक्वल टू बैकअप। इसलिए मैं 3.5 दे रहा हूँ दोनों बॉलिंग में एंड बैटिंग में, और मैं 7 पॉइंट दे रहा हूँ इनको आउट ऑफ 10। दैट इज ब्रूटल अक्षित। नहीं देखो, वी आई थिंक सो फॉर यू आर दे क्वालिफाई। नो नो नो, फॉर मी दे आर नॉट क्वालिफाइंग, क्योंकि आई सी एटलीस्ट 5 better teams than them on paper who have players in form, who have good backups, who have good like to like replacements, and who can use impact players better and have depth in both Indian as well as foreign players. तो आप मैं आपको आपको गिना सकता हूँ। आप SRH ले लीजिए, आप CSK ले लीजिए। CSK टॉप पे रहेगी अगर आप बैकअप प्लेयर्स को देखें एंड लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट देखें। CSK है, KKR है, पंजाब है, SRH है। ये 4 टीम तो इनसे बेटर लग रही हैं। एंड समवॉट इन टर्म्स ऑफ आइदर आर के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छा उन्होंने इंडियन कोर बना के रखा है वहाँ पे। तो जिस टीम में जायसवाल हो, सैमसन हो, रियान पराग हो, ध्रुव जुरेल हो, तो वो भी एक अच्छी इंडियन कोर बैटिंग बैकअप बन के वहाँ पे चल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट्स दिस टीम विल नॉट लुक फेवरेट्स फॉर टॉप 4, बट वी हैव सीन दे समहाउ मैनेज टू रीच टॉप 4। ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पहुंच सकते, बट एज ऑफ नाउ आई डू नॉट सी देम क्वालिफाइंग। If they have to qualify, Virat Kohli needs to have another 800 runs tournament. Patidar needs to have at least 400 runs tournament. He needs to captain them well. Josh Hazelwood and Bhuvneshwar need to pick early wickets in power play. Spin department थोड़ा weak है, इसलिए मुझे थोड़ा weakness लग रही है, इसलिए मैं इनको टॉप 4 में नहीं देख रहा हूँ शुभम। आपका क्या कहना है? सी बैटिंग में ना, मैं उनको आई विल गिव देम 4.5। ओके। आई फील लाइक देयर बैटिंग इज सॉर्टेड। अगेन
इफ्स एंड बट्स है उनका, सारे प्लेयर खेलने होंगे। नन ऑफ लाइक लियाम लिविंगस्टन भी छोड़ नहीं सकते, फिल सॉल्ट भी छोड़ नहीं सकते, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि इंजर्ड हो जाए। अगर इंजर्ड हो जाए दैट दैट 4.5 बिकम्स 3.5। कोई कोई एक भी प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाए, बट हम्म थिंकिंग पॉजिटिवली, बैटिंग आई गिव देम 4.5। बॉलिंग बिकॉज दे हैव वीकनेस इन द स्पिन अटैक, आई डोंट सी देम हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर स्पिन अटैक। आई द मैक्सिमम आई कैन गिव देम इज 3.5। ठीक है ना? सो आई गिव देम 8। नाउ with their chances, I feel like the three teams depends a lot on ifs and buts. Those three teams are RCB, MI, and CSK. CSK, if Dhoni plays well, you know, if the हम्म spinner starts bowling so well, if they somehow can win 2 to 3 matches outside. MI, if their top 11 plays well, उनका भी बैकअप अच्छा नहीं है. If हम्म somehow Bumrah can come in early in the tournament, उन्होंने बोल्ट को लिया है, बोल्ट इज नॉट इन हिज पिक। ठीक है ना? उनका भी स्पिन अटैक उतना खास अच्छा कुछ है नहीं। अगेन आरसीबी, if all their players stays well, if their bowling attacks, if somehow we see Bhuvaneshwar Kumar, although he is beyond his peak, can give you good overs. ठीक है या ना? If Suresh Sharma comes good, all these ifs have to come good for them all to qualify. तो मैं तीन टीमों को इक्वल चांसेस देता हूँ टू क्वालिफाई, आरसीबी, एमआई, सीएसके। दिस थ्री टीम कैन क्वालिफाई, आई गिव देम इक्वल चांसेस। लोगों को अगर बुरा लगा तो लग सकते हैं, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। with what they have, there is lots of ifs and buts with all these three teams. But again, if they play their strongest, if अगर उनका जो strategy है, अगर if things comes to reality, then they are very dangerous team. और अगर तीनों का चल गया ना, you might see all three of them in the top four. Again, अच्छा all these ifs and buts have to go their way. हम्म तीनों टीमों का अगर ifs and buts goes their way, right? You might see all RCB, CSK, MI in the top four. अगर तीनों का नहीं चले तो आपको ये भी दिख सकता है कि तीनों में से कोई भी टीम टॉप फोर में नहीं है। बिल्कुल सो यार इक्वल चांसेस, 8 पॉइंट देता हूं मैं 10 में से। एंड आई थिंक लेट्स सी, हम लोग बहुत लेट कर दिया आरसीबी का। सो टुमारो इज देयर फर्स्ट मैच अगेंस्ट केकेआर। इट्स द या ओपनिंग मैच, आई थिंक इट इज इन ईडन गार्डन्स। इट इज इन ईडन गार्डन्स बट फैंस के थोड़ी बुरी खबर है कि देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ रेन 70% फोरकास्ट है अब देखो कितना होता है मैच होता भी है तो 5 ओवर का होता है या 10 ओवर का होता है वी शुड हैव अ गेम क्योंकि ईडन गार्डन्स का भाई ड्रेनेज बहुत बढ़िया है पाकिस्तान के 10 ग्राउंड मिला लो उतना ड्रेनेज नहीं होता जितना यहाँ पे ड्रेनेज है यहाँ पे और चिन्ना स्वामी ये दोनों बेस्ट ग्राउंड है ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम में यस। तो देखते हैं यार क्या रहता है आइडियली अ टूर्नामेंट शुड स्टार्ट ऑन अ हाई पूरा 20 ओवर होते अच्छा लगता कि भाई हाई स्कोरिंग मैचेस होते बट देन गेम हो जाए वो बड़ी बात है इफ वी गेट टू सी अ गेम इट विल बी अ क्रैकर यार या केकेआर या वर्सेस बिल्कुल। आरसीबी केकेआर आर द डिफेंडिंग चैंपियंस and let's see how it goes who will you support tomorrow shubham Because it's in Eden Garden and because KKR has been favorite over RCB, for tomorrow's match, I might go with KKR same for me for these. आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग केकेआर क्योंकि उनके पास अच्छे अगर 5-6 ओवर का गेम हुआ तो उनके पास सुनील नारायण अंद्रे रसल है जो आके 6 ओवर में 90 रन मार सकते हैं तो दे हैव एन एज आरसीबी के पास भी कम नहीं है भाई, आरसीबी के पास भी कम नहीं है, बट बैटिंग के लिए मैं इतना ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ। बट इन द बॉलिंग अटैक, इफ इट्स अ 5-6 ओवर मैच, दे डोंट हैव ए लाइक बुमराह और प्रॉब्ली लाइक पीपल हु कैन बॉल यॉर्कर्स, और या इवन एमएसटी स्पिनर लाइक वरुण चक्रवर्ती, नारायण, बहुत डेंजरस हो जाएंगे। बिकॉज वी हैव सीन हाउ मच दिस इंग्लैंड प्लेयर्स हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती। अभी तक या वो ये लोग समझ नहीं पाए। तो कल एक ओवर अगर वरुण चक्रवर्ती का हो, एक ओवर सुनील नारायण का हो, 2 ओवर तो उधर ही चला गया बिल्कुल यार एंड व्हाट इफ ही गेट्स द बिग फिश विराट कोहली आउट ना। तो खत्म बिल्कुल गेम बिल्कुल। खत्म सो मुझे लगता है कि जितना कम ओवर के मैच होंगे, दैट विल सब दैट विल मोर एडवांटेज में जाएगा केकेआर के। द बिल्कुल लेसर बिल्कुल द नंबर ऑफ ओवर्स हियर्स, मोर द केकेआर विल टेक दैट एडवांटेज ऑफ दैट, क्योंकि उनके पास बॉलिंग है इतना अच्छा। बैटिंग तो दोनों टीमों के पास है अच्छा, बट बॉलिंग इट विल बी केकेआर हिज फेवरेट। और ईडन गार्डन में खेल रहे हैं, अपने होम क्राउड के सामने खेलेंगे। दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, so they like to start well. बट आरसीबी भी इस बार जोश में आएंगे। दे हैव अ न्यू कैप्टन, ही हैज टू प्रूव सो मच, ही हैज टू कनेक्ट विद द फैंस, क्योंकि मुझे लगता है कि इन आरसीबी, राइट, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट यू कनेक्ट विद द फैंस एज मच दैट यू गेट अ ट्रॉफी। क्योंकि जो फैन सपोर्ट आरसीबी को मिलता है ना, दैट इज नो लेस देन अ ट्रॉफी, अक्षय, टू बी या ऑनेस्ट। बिल्कुल यार
मतलब इतना, मतलब क्या बोलते हैं उसके, क्या बोलते हैं उसको, उसको अनकंडीशनल लव मिलना। अनकंडीशनल लव है सही में यार। मतलब this is people should be lucky, and I think all these RCB players are lucky. So I think first thing that Rajat Patidar should do is connect with their with their fans, and I think he has a great platform. He has Virat Kohli with him. So this season खेलो भाई, आराम से खेलो। चिन्ना स्वामी विल बी देयर टू सपोर्ट। मैं भी 2-3 मैच देखने चला जाऊंगा, ठीक है ना? लेकिन भाई टिकट मिलना बहुत मुश्किल है यार, मतलब मत बताओ इधर। जो भी हो। तो आरसीबी हैज अ ग्रेट चांस टू डू समथिंग इनक्रेडिबल अंडर न्यू कैप्टन दिस ईयर। तो देखते कैसा रहता है। कल उनका पहला मैच है, वील हैव टू सी। डू जॉइन अस फॉर टुमारोस मैच। हम क्या क्या करने वाले हैं अक्षित कल? यार एक तो हम मतलब पोस्ट मैच तो आएंगे ही आएंगे, हम्म। एंड उसके साथ वी माइट कम अप विद द आफ्टर द टॉस कि क्या टीम बनी है। यस। वी कैन कम लाइव फॉर क्विक 10 मिनट्स एंड टेल यू दी कोई क्या प्लेइंग 11 है, क्या कंडीशंस हैं। हम्म। तो बढ़िया एक्साइटिंग आईपीएल शुरू होने वाला है यार। एंड इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की बड़ी लीग है, वर्ल्ड की बड़ी लीग है। तो यप। ऑल geared up and all excited. Let's see how it goes. Till then, please keep liking our videos, keep subscribing to our channel. And till then, bye bye. Take care, everybody. डू जॉइन अस टुमारो गाइस, बाय बाय।